Good evening, everyone. Welcome again to our beloved Dada's Zoom learning series. Unfortunately, Dr. Sonal is not able to join this session today. And so I'll try my level best to be so precise like her with her good examples. But yes, of course, मैं ना दादा की तरह हो सकती ना डॉक्टर सोनल की तरह हो सकती हूँ, लेकिन I will try my level best. So yes, let's start with cherry plum. And for me to start with cherry plum, as we all know that this belongs to a peer group, but I have been taught by Dada to describe the plant first before we jump into how cherry plum affects the kids, the animals, its positive affirmations, the parafunctional habits, and the similarities and differences between cherry plum and other remedies. So quickly about the plant, that the plant grows to the height of 9 to 12 feet roughly, and it is quite shabby in nature, shabby looking plant. And just like you can correlate with how the cherry plum mind works. The thoughts are quite shabby. They have a loop inside our mind. They keep on irritating us, agitating us. So the same manner, the plant is quite shabby looking, though it doesn't have thorns. Outburst जो होता है तो वो एक थॉनी की तरह होता है, but it doesn't have thorns. So we will see how the plant correlates. जैसे कि ये messy दिखता है, shabby दिखता है, same way our thoughts are quite messy in our head. Now, in other ways, the fruit. The fruit is generally used to make jams. We all know that. And it is also fermented to make wine. Now, what does the wine does? So wine relaxes the nerves, relaxes the mind, and makes you sleep better. So that's the work of the wine. So वो चेरी प्लम के माइंड से ही समझ जाइएगा हाउ पीपल आर नर्वस, हाउ दे आर एजिटेटेड एंड हाउ इट रिलैक्सेस. सो एसेंस रिलैक्स करता है, लेकिन इधर इसको फर्मेंट करने से, इसके फ्रूट को फर्मेंट करने से वाइन जो बनता है वो भी रिलैक्स करता है. नाउ इन अदर वर्ड्स, व्हेन द फ्रूट्स आर बॉइल्ड, दे रिलीज पेक्टिन फ्रॉम द सेल वॉल्स. एक तरह का केमिकल होता है पेक्टिन विच इज रिलीज फ्रॉम द सेल वॉल्स. दिस पेक्टिन इज यूज्ड एज अ थिकनर in many food industries, and as well as drug companies also they use it as a carrier of some drugs, especially the drugs that helps in clotting the blood, and the cholesterol tablets या cholesterol जो drugs बनती है उनको एक कैरियर की तरह फॉर्म करने, एक बेस की तरह काम में लिया जाता है चेरी प्लम फ्रूट को. Right, so this is it. And another thing, now cherry plum itself is red in color. It starts with that pink, greenish pink, and then purplish, and then it becomes red deep. Now, looking at the flower, they are the one of the most beautiful looking flowers. Cherry plum flowers are pure white, and they represent the gesture of purification, that tranquility for the raging dark souls of the mind. जो दिमाग के अंदर गुस्सा भरा हुआ है, जो अनकंट्रोलेबल फियर है, गुस्सा है. सो द फ्लावर्स, दे बिहेव लाइक दैट, दे लुक लाइक दैट, कि आपको उसको देख के एकदम कामनेस आ जाए. दे आर सच ब्यूटीफुल लुकिंग फ्लावर्स. एक बार दादा पता नहीं कहाँ से ये फ्लावर्स लेकर आए थे, और इमीडिएटली हमको, वी हैव नेवर सीन दैट फ्लावर, दोज फ्लावर्स. सो हम सब बोल रहे थे, दादा ये जैस्मीन है क्या है, तो बोले लग कैसे रहे हैं. दादा बहुत सुंदर लग रहे हैं, मतलब इतने सुंदर वाइट कलर. बोले चेरी प्लम फ्लावर्स हैं ये. सो इवन ही वॉज वेरी एंथुजियास्टिक. जहां पे भी फ्लावर्स मिलते थे तो फ्लावर्स लेकर आते थे, कहीं ना कहीं से उसका नाम पूछते थे, और फिर हमको उस फ्लावर्स के बारे में एक लंबी जानकारी कई बार हो जाती थी. कोई और क्लास लेनी होती थी, बट उनके डेस्क पे इतने तरह तरह के फ्लावर्स होते थे, एंड वी वुड स्टडी अबाउट द फ्लावर्स, वी वुड स्टडी अबाउट द प्लांट्स. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम many things came out from the plants, many things came out, and that is how we remember. Rather than, he would never focus us on remembering the keywords. Rather than the keywords, he would say कि वो keywords तुमको plant के अंदर ही मिल जाएंगे. Right. So Sonal ma'am had a very good insight of the keywords and how she would relate it with the patients and what are the positive affirmations. So instead of going through those keywords, let me explain how Dava explained cherry plum in stages. So that way we will understand the keywords also. So basically,
चेरी प्लम इंडिविजुअल नेगेटिव एक्सपीरियंस जो होता है इंडिविजुअल्स का, दैट इज अ फीलिंग ऑफ फैनेटिज्म, दैट इज अ फीलिंग ऑफ मैडनेस आउट ऑफ टू थिंग्स। ये जो फीलिंग ऑफ मैडनेस आती है, फेनेटिज्म आती है, इट इज जनरली एंड मेनली आउट ऑफ टू थिंग्स, आउट ऑफ ऑब्सेशन एंड आउट ऑफ फियर। So much so that the patient is scared of the breakdown in themselves. Sometimes they are scared of breaking things. Sometimes they are scared of hurting other people. Sometimes even their incorrect behavior or something disastrous. Right? So ये हो गया चेरी प्लम के keywords. Now let us understand cherry plum in different stages. सो इन माइल्डर स्टेज वी नो, जब नेसेंट स्टेज होता है जनरली हमें पता ही नहीं चलता है कि व्हाट इज गोइंग ऑन इन अ पर्सन। बट वो माइल्डर जो स्टेज होता है, फ्रॉम देयर इफ यू कैच द इंडिविजुअल इन एनी नेगेटिव स्टेज, इट इज वेरी इजी टू रेक्टिफाई दैट स्टेज। सो इन माइल्डर स्टेज व्हाट हैपेंस, द पेशेंट सिंपली ट्राइज टू कंट्रोल देयर बिहेवियर। उनको पता है कि कुछ हो रही है, देयर एजिटेटेड माइंड, देयर थॉट्स, दे आर ट्राइंग टू कंट्रोल दोज थॉट्स कि कहीं ना कोई कुछ गड़बड़ हो रही है। दे आर ओवर थिंकिंग, दे आर ओवर इमेजिनिंग, दे आर ऑकवर्ड फ्राइटनिंग। सो दे आर ट्राइंग टू ब्रिंग बैक देयर कॉन्फिडेंस, अपने आप से कोशिश करते हैं ये लोग। सो दैट इज द माइल्डर स्टेज। उस वक्त आपको अक्सर पता नहीं होगा, बट थ्रू देयर बिहेवियर, थ्रू देयर ऑकवर्ड बिहेवियर, आप उनसे पूछ सकते हो कि क्या चल रहा है दिमाग में। फ्रॉम देयर यू कैन कैच। एंड दैट इज दिस इज वन रेमेडी जो दादा बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करते थे। इनफैक्ट इनकी A1 में भी ये रेमेडी है। नाउ गोइंग फर्दर देन दिस स्टेज, फ्रॉम दिस माइल्डर स्टेज टू अनदर स्टेज, जब ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं अपने एजिटेटेड थॉट्स, द पेशेंट फेसेस अननेसेसरीली मेंटल कंडीशंस। फॉर एग्जांपल, एक 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 गायक को स्टेज पे जाना है, सो नो कंटिन्यूस थॉट्स आ रहे हैं, मैं कहीं कोई लय ना भूल जाऊं, मैं कहीं कोई ट्यून ना भूल जाऊं। राइट, अब वो जब कंट्रोल कर ही नहीं पा रहे अपने थॉट्स को, तो एक अननेसेसरी मेंटल कंडीशन आती है, स्टेज फ्राइट। अब उनको घबराहट होती है स्टेज पे जाने में। सी वी आर टेकिंग वन एग्जाम्पल एंड वी आर गोइंग जस्ट लाइक दैट। जैसे मैंने आपको वाइन, सॉब और उसके बारे में ग्रुप पे बताया था, रॉक वाटर के बारे में। सो दिस इज द सेम वे वी विल डील। सो जब वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं थॉट्स को, तो सेकंड स्टेज आती है, स्टेज फ्राइट आती है, जहां पे अब धीरे धीरे एंजाइटी आने लगती है उनके मन में। यू नो, दे आर वेरी एंशियस, स्टेज फ्राइट की वजह से दे आर बिकमिंग एंशियस। नाउ इन अनदर स्टेज, अब इसके बाद जो स्टेज आती है उसमें क्या होता है, द पेशेंट दे फेस डिसरप्टिव इम्पल्सेस। अब मतलब अब है ना, फ्रेटफुलनेस आ जाती है, डिसरप्शन आ जाता है उनके इम्पल्स के अंदर। नाउ व्हाट हैपेंस, बिकॉज ऑफ दिस दे आर अट्रैक्टेड टू प्रो एनीथिंग, जैसे भी कोई भी प्रोवोकेटिव चीजें होंगी, या उसके अलावा हम बोल सकते हैं समथिंग दैट इज फॉरबिडन। सो दे आर अट्रैक्टेड टू दोज थिंग्स, वो अपने आप को ठीक करने के लिए। तो अब यहाँ पे क्या होगा, इतना फ्रेटफुल हो रहा है, इतना एंक्शियस हो रहा है वो सिंगर, तो उनको लग रहा है चलो एक सिगरेट पी लेता हूँ, या किसी फ्रेंड ने दिया कि तू एक सिगरेट पी ले, यू विल फील रिलैक्स्ड, यू नो, द रिलैक्सेशन ऑफ नर्व्स। तो यहाँ पे दिस इज द फॉरबिडन कंटेंट, और ये बोल सकते हैं प्रोवोकेशन किया गया है किसी फ्रेंड के द्वारा टू मेक यू रिलैक्स। सो दिस इज अ स्टेज फर्दर देन दिस। यहाँ से वो आदत भी पड़ सकती है। एवरी टाइम ही हैज टू गो और शी हैज टू गो ऑन द स्टेज, दे विल थिंक आई शुड टेक अ सिगरेट, तो मैं रिलैक्स हो जाऊंगा या मैं रिलैक्स हो जाऊंगी। सो दिस इज अ स्टेज फॉर them। एंड इन इंटेंसिफाइड स्टेज, अब आगे इससे भी आगे क्या होता है कि द पेशेंट इज नॉट ओनली थ्रेटन बाय द थॉट्स, नॉट ओनली लाइक द थॉट्स आर नॉट ओनली कंट्रोलिंग देम, उससे ज्यादा क्या होने लगेगा, फिजिकल उनके आने लगेगा, उनकी एक्शंस में भी आने लगेगा। वो एक्शंस हम पैरा फंक्शनल में देखेंगे, लेकिन वो एक्शंस में आएगा, एंड द बॉडी विल बिहेव वेरी इम्पल्सिवली। और एक्शंस कैसे होगा, फोबिया हो जाएगा, या कोई लाइक फिजिकल या मेंटल ब्रेक डाउन हो जाएगा। या जो छोटे बच्चे होते हैं ना, जब कहना नहीं मानते हैं तो हम उनको रात को डराते, तुम जल्दी सो जाओ, सुबह स्कूल नहीं जा पाओगे, तो फिर हम क्या बोलते हैं कि वो जो नीचे वॉचमैन है ना, डंडा लेकर आ रहा है, वो ऊपर आ जाएगा तुमको लेने। सो यू आर इंस्टिलिंग दैट फियर इन द चाइल्ड विच वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड इन एस्पिन। लेकिन उससे क्या हो रहा है, पैरा फंक्शनली क्या होता है, बच्चा घबराहट में या डर के मारे रात को उठता है और वापस सोने की कोशिश करता है, लेकिन वो बेड वेटिंग हो जाती है।
So there are a lot of parafunctional habits. What happens, ये बचपन में ऐसा होता था. So these are when physical breakdown होगा या mental breakdown होगा या stammering होगी, all these parafunctional habits. Hysterical हो जाएगा patient, या स्टटरिंग करने लगेगा, या आंखें मिचमिचाएगा, these are the या दे विल बाइट, दे च्यू दे लिप, या हाथ पैर हिलने लगेंगे, या दे विल जस्ट अपने पैर हिलाने लगेंगे. हमारे बड़े बुजुर्ग नहीं बोलते थे पैर मत हिलाओ. सो दिस इज कनेक्ट टू दैट बिगेस्ट नर्व. पैर हिलाने से वो सर्कुलेशन जल्दी बढ़ जाता है. दिस इज ऑल लाइक वेरी टेक्निकल, बट दिस इज व्हाट चेरी प्लम, एंड दीज आर द पैराफंक्शनल हैबिट्स इंटेंसिफाइड स्टेज में. अब उससे भी ज्यादा क्या होता है कि जब इंटेंस चेरी प्लम स्टेज होता है, एक्सट्रीम केसेस में क्या होता है कि व्हेन अ पर्सन इज इन सुसाइडल मोड, या बोलते हैं ना कि बहुत सेवरल क्राइम्स, दीज सेवरल क्राइम्स और द सुसाइडल मोड, they are committed in intense cherry plum stage. Some stage, at one stage, when they're not able to control their anger, when they're not able to control their behavior pattern, or they were not able to control themselves at all, overall. So that intense stage में many crimes are committed. Even suicidal हो जाता है इंसान. And उस स्टेज के अंदर आप जनरली नोट करेंगे, इंस्टेड ऑफ द आउटबर्स्ट, दैट अनकंट्रोलेबल आउटबर्स्ट, the person will just stare at you blankly, but in such a horrifying nature कि आपके मन में एक बार आएगा कि ये आउटबर्स्ट हो जाए तो ज्यादा अच्छा है. So that intense stage when the person is gazing at you without any thought, without any action or reaction, and so blankly that you are scared, that is an intense stage, cherry plum negative stage. So we have seen cherry plum, various cherry plum इन डिफरेंट स्टेजेस. सो इट इज ऑलवेज बेटर कि अगर आप पेशेंट को समझ पाए, या बाय क्वेश्चनिंग या वट एवर इट इज, अगर वो नेसेंट स्टेज में पकड़ा जा सकता है चेरी प्लम नेचर, सो वो जो ओवर थिंकिंग होती है वो हम एक एक स्टेज पे आने पे कर्व कर सकते हैं. अदरवाइज इट कैन टेक अ वेरी रॉन्ग रूट ऑल्सो, राइट. सो दिस इज अबाउट चेरी प्लम नेगेटिव. एक दादा के पास आई हैव अ वेरी गुड एग्जाम्पल. सो देयर वाज अ वॉर वेटरन. जस्ट आउट ऑफ ब्लू ही केम टू दादा वन डे. ये बहुत साल पहले की बात है. एंड ही वॉज शैबीली ड्रेस्ड. जस्ट इमेजिन द शैबीनेस ऑफ द ट्री. सो ही वॉज शैबीली ड्रेस्ड, दाढ़ी बड़ी हुई, नाखून गंदे और गंदे कपड़े. एंड ही केम टू दादा और इतना ही बोला कि मुझे रात को नींद नहीं आती, मुझे दवाई चाहिए, किसी ने मुझे आपके पास भेजा है. सो दादा हैड अ वेरी गुड हैबिट. ही वॉज अ वेरी काम पर्सन. उन्होंने पानी में जो वो दवाई मिलाते हैं, दवाई मिलाई, बोले आप ये पानी पियो, बैठो, मैं ये 4-5 पेशेंट देख लेता हूँ उसके बाद. और वो हमारे को सिर्फ इतना सा मैसेज कर देते थे, या वहां पे मानसी बैठी होती थी तो बोल देती थी इसके ऊपर ध्यान देना. मीनवाइल ही वुड सी द पेशेंट्स और उसके ऊपर ध्यान भी. द मोमेंट ही यूज्ड टू सी कि हाँ कुछ होने लगा है, ठीक होने लगा, ही हैड दैट नेक, दादा हैड दैट नेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग हिज पेशेंट्स विदाउट देम स्पीकिंग. सो ही वुड कॉल हिम. फिर उनको अपने पास बुलाते थे, बोलते थे अब बताइए आपको नींद क्यों नहीं आ रही है. इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आफ्टर मल्टीपल सिटिंग्स ऑफ 7 सिटिंग्स, एक हफ्ते बाद वो इंसान आके एग्जैक्ट उसने अपनी हिस्ट्री बताई. एंड वी वर सो शॉक दैट ही वॉज स्पीकिंग सच अ गुड इंग्लिश, सच अ गुड हिंदी, और वो गुजराती. ग्रेजुअली पता चला कि ही इज अ वॉर वेटरन, एंड ही हैज बीन थ्रोन आउट ऑफ हिज हाउस बिकॉज ऑफ हिज बिहेवियर पैटर्न. वो रात को उठ के चिल्लाता था, वो स्लीप वॉक करता था, एंड हिज हंगर हैड डाइड, and he couldn't sleep, and he was drinking a lot, and his behavior had become so erratic कि उसके घर वाले उसके साथ रहना पसंद नहीं करते थे. And he was just roaming about in the streets, so he had become so shabby. स्लोली दादा बिहेव्ड इन सच ए मैनर कि उन्होंने बोला कि मैंने किसी से बात की है, आप एक बार ये कपड़े पहन लीजिएगा, मैं कपड़े रख रहा हूँ, और वहां नहा धो के वो आपके शेव वे बना देगा. दैट मैन आफ्टर 4 months he had so much control. He had not exactly stopped drinking, but वो दादा को आके बात करते थे, आज मैं थोड़ा सा पी के आया हूँ, but I am okay. And one fine day, दादा called his family और continuous after 4 or 5 months, I remember very well, दादा said कि मैं इसको सिर्फ और सिर्फ चेरी प्लम और होली दे रहा था. At times he would add, I remember he would add white chestnut also, और कुछ और भी ऐड कर रहे थे, रॉक रोज भी ऐड कर रहे थे. Gradually he would change, but cherry plum was a remedy which was continuously he was giving him for from 5 to 6 months.
That war veteran is still staying with his family and very often he calls us, और आज भी वो याद करते हैं कि उनकी वजह से आज मैं अपनी फैमिली के साथ हूँ. That was दादा सिंप्लिसिटी. दूर से इंसान को पहचान जाना, थोड़ी देर अपने पास बिठाते थे, पानी पिलाते थे, पानी में वो पहले ही दवाई. That was, he was God gifted, definitely. So we have so many examples of Dada. I just remembered because of Cherry Plum and I have shared this example with you. एंड अनदर एग्जाम्पल आई वुड गिव कि जितने भी बोलते हैं ना कि जो एडिक्टिव रिहैबिलिटेटर्स होते हैं, जो रिहैबिलिटेशन सेंटर से आते हैं, दादा प्रिफर्स गिविंग देम चेरी प्लम एंड ऑलिव. चेरी प्लम इसलिए देते थे कि कहीं उनका डिटर्मिनेशन वेवर नहीं करने चल लग जाए बिकॉज ऑफ ओवर थिंकिंग कि आई एम नॉट फीलिंग गुड, आई एम फीलिंग वीक. तो दादा हैड अ हैबिट ऑफ गिविंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ हिज J3 एंड चेरी प्लम. सो दैट ऑल्सो यू कैन रिमेंबर. और एक और चीज दादा करते थे, whenever he had to give agri money, so with agri money he would always add holy and cherry plum so that वो unwarranted outburst नहीं हो. क्योंकि एग्री मनी पॉजिटिव का यही होता है कि वो इंसान बोलने लगता है, सो वो कहीं अनवारंटेड आउटबर्स्ट नहीं हो, सो ही वुड ऑलवेज एड चेरी प्लम एंड होली. सो दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम टेलिंग यू. ये तीन चीजें what dada used to do very often, so I have shared this with you. Now let's come back to our learning series. इससे आगे जो दादा ने मुझे सिखाया था, that was Cherry Plum Kids. So Cherry Plum Kids in today's generation, जो ये बच्चों की जनरेशन है, it's often seen that cherry plum is a must in their remedies. That is because they have to go through this fast-paced life. There is so much of peer pressure. There is so much of competition कि हमेशा there illogical कई बार उनका outburst होता है. We can understand that happens in teenagers. पर जो बच्चे टेंट्रम रेज वाले होते हैं या जिन बच्चों को हमने देर इज ऑलवेज अ रीजन बिहाइंड द बेड वेटिंग, या तो हमने बच्चों को डराया होता है बचपन में, बिकॉज हम अपना काम फटाफट हो जाए उस वजह से हम बच्चों को कई बार अनरीजनेबली डरा देते हैं. हमें समझ में भी नहीं आता है कि ये कितना बड़ा इफेक्ट कर सकता है उनके ब्रेन पे. सो दोज टीन्स दे ग्रो इनटू इनसिक्योर टीन्स, राइट. अब इनसिक्योर टीन्स तो हो गए, लेकिन एक और चीज जो हम मिस कर जाते हैं इज द हार्मोनल इम्बैलेंस विच कीप्स ऑन हैपनिंग इन देयर बॉडी ड्यूरिंग दिस टाइम. और आज के जमाने में हार्मोनल इम्बैलेंस इतना होता है, इट इज बिकॉज ऑफ multiple reasons. It can be because of their diet, it can be because of erratic diet, erratic sleep, erratic lifestyle, so much of school pressure or job pressure. So उस प्रेशर के अंदर समटाइम्स दे ब्रेक डाउन, समटाइम्स दे वांट टू हर्ट अदर्स एंड दे नो कि आई माइट हैव हर्ट समवन. सो दे आर अवेयर ऑफ दिस थिंग बट दे आर नॉट एबल टू कंट्रोल. दे ऑल्सो से कई पेशेंट्स, कई बच्चे ऐसे होते हैं, आई विल लूज माई फ्रेंड्स बिकॉज ऑफ माई बिहेवियर इज बिकमिंग सो इरेटिक, माई माइंड इज ऑलवेज गोइंग मैरी गो राउंड, मैं अपने थॉट्स कंट्रोल ही नहीं कर पाती हूँ. दीज आर द स्टफ दे आर गोइंग अराउंड एंड दे आर सो हेल्पलेस एट टाइम्स. बोलते कि मैं रास्ते में खड़े खड़े चिल्ला देते हूँ अपने फ्रेंड्स के ऊपर बिकॉज आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग. देन आई हैव टू आस्क देम, इज दैट बिकॉज ऑफ द पीरियड्स? सो देन दे रियलाइज यस दिस इज बिकॉज ऑफ द पीरियड्स. पीरियड्स के पहले उनको गुस्सा आता है, बाद में उनको गुस्सा आता है. देयर आर सो मेनी चेंजेस गोइंग ऑन इन देयर लाइफ बट वी डू नॉट अंडरस्टैंड टू शो देम द राइट पाथ. सो together with the medicine you have to understand the kids, you have to understand, listen to the kids and make them understand कि ये सब के साथ आपको पढ़ाई के साथ साथ you have to do other things to improve your lifestyle, to improve your sleep habit, to improve your diet, to improve that erratic diets you are having which is causing more hormonal imbalances. तो बच्चों के लिए चेरी प्लम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बेसिकली क्या होता है व्हेन दे आर टीन्स, सो दे आर इमेच्योर. अब इमेच्योर होते हैं तो इलॉजिकल उनके आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, इलॉजिकल उनका बिहेवियर होता है, उनका आउटबर्स्ट भी इलॉजिकल होता है. बट फॉर देम दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज वेरी क्रूशियल ऑल्सो. उनको लगता है कि हमको इलॉजिकल रख रहा है बट दिस इज लॉजिकल फॉर देम. सो दैट इज अ पॉइंट वेर यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड चेरी प्लम वर्क्स बेस्ट इन किड्स क्योंकि दैट इज अ नेसेंट स्टेज पे अगर आपने पकड़ लिया है. सो चेरी प्लम विद अदर रेमेडीज वर्क्स बेस्ट फॉर द किड्स. Now coming to my favorite section and that is animals. ये बेचारे बेजुबान,
कोई भी तरीके से आपको नहीं बता पाएंगे कि उनको भूख लग रही है, उनको इरिटेशन हो रहा है, उनको कुछ बॉडी में परेशानी हो रही है, या उनको डर लग रहा है, वो नहीं बता पाएंगे. सो चेरी प्लम वर्क्स बेस्ट स्पेशली फॉर कैट्स. Cats are obsessed of cleaning themselves. They lick themselves and they clean themselves. They are so fanatically at times cleaning themselves कि डिसफिगरमेंट भी हो सकता है, उनके सारे बाल उड़ जाते, इतना क्लीन करती हैं कोई कैट्स तो अपने आप को. सो इट इज वेरी गुड रेमेडी फॉर दोज कैट्स. इट इज वेरी गुड रेमेडी अगेन फॉर दोज लिटिल पेट्स जो जस्ट पैदा हुए हैं या आपके घर में आए हैं, और अगर आप किसी दिन उनको छोड़ के अकेला छोड़ के चले जाओ. So they are so anxious, not seeing anybody around. They are so anxious, they are so scared कि वो इधर उधर सारे सोफे फाड़ देंगे आपके. They will bite your shoes out. So that's because we are at a fault. We have left them at home without without any notice or without telling them. They understand a lot. So out of that scaredness, yeah, out of that nervousness, they will they will just tear your sofas. They will tear your shoes. That is where cherry plum comes very handy. And again, during competition, this was used by me. So वो dog show वगैरह होता है, sometimes dogs behave very nicely, but sometimes because of our presence, because of our loudness, and because we are cheering them so much, they are so scared, they become hysterical. फिर वो frantically इधर उधर जाने लगते हैं, आपको काटेंगे, किसी और को पकड़ेंगे. That is because they are scared. एंड द सेम वे जब दिवाली का टाइम आता है, या स्पेशली सुनामी का टाइम था, सो द डॉग्स आर वेरी स्कैर्ड. दे डोंट लाइक दे डोंट लाइक बॉम्ब्स, दे डोंट लाइक आवाज, कोई भी तरह की पटाखे की आवाज वगैरह उनको बिल्कुल नहीं पसंद है. या तो वो दुबक के कहीं कोने में बैठ जाएंगे. अगेन, दैट इज नॉट कंट्रोलेबल इन देयर बिहेवियर पैटर्न, या कुछ ज्यादा ही हिस्टेरिकल हो जाएंगे. सो चेरी प्लम कम्स वेरी हैंडी ड्यूरिंग दैट टाइम ऑल्सो. And cherry plum comes very handy during mating season when they are not able to control themselves. Yes, and sometimes कई बार आपने नोट किया होगा कि कुत्ता अपनी ही पूंछ को चबाने की कोशिश कर रहा है या खाने की कोशिश कर रहा है. That is because some ticks are there and he is not able to control the control the irritation that those ticks are causing to them. So the cherry plum comes very handy in such animals. और ये generally, why do I talk about only cats and dogs? Because ये पेट्स होते हैं ज्यादातर. अदरवाइज आई रिमेम्बर वेरी वेल रेशमा एंड मानसी, दे हैव बोथ यूज्ड चेरी प्लम ऑन एलिफेंट्स, and that will be discussed in the group because it will take a lot of time. So yes, we have discussed all the parafunctional habits ki hysterical ho jate hain, they keep staring, they will blink their eyes, they will tap their feet, they will chew, the patients will chew their lower lip especially. uh, Continuous urination hota hai, and there is a change in their hunger, change in their diet. So these are the parafunctional habits of negative cherry plum stage. Now comes the most important part that confused me all the time. So that was the way of Dada teaching us the difference and the similarities between the concerned remedy with other remedies. So today, cherry plum, we will understand this cherry plum similarity difference between aspen, holy, impatiens, and sweet chestnut. So coming quickly to, let me end this sentence. Yes. Coming quickly to cherry plum and aspen. So in extreme state, both similarity पहले समझिएगा. In extreme state, they appear to be compulsively influenced. So we know about that aspen also, and we know about cherry plum कि in extreme state they can be compulsively influenced by others. जैसे अभी हमने cherry plum के बारे में पढ़ा था कि in a deeper instance से they provocative या forbidden content से they can be influenced. So अब cherry plum कैसा होता है कि since they appear from a very long time, they have been controlled, they have suppressed feelings, so they are threatening to break loose, right? So this is cherry plum. But aspen में क्या होता है कि they are wide open to their surroundings, and उनको ऐसा लगता है they are flooded by the surroundings. तो अब वो जो फ्लडनेस होती है, they are unable to deal. उनको समझ में नहीं आ रहा होता है कि इतनी बड़ी सराउंडिंग है, सब कुछ उनके ऊपर आ रहा है. सो दे आर अनएबल टू डील विद द सराउंडिंग्स, एंड देन दे विल गो अलोंग विद दैट स्ट्रॉन्गेस्ट इम्पल्स. जैसे एक बार दादा ने एस्पिन के लिए कहा था, पेड़ के नीचे बैठे थे, पेड़ के ऊपर से कहीं मेरे पीछे सांप लौट रहा है.
सो ही वॉज अनएबल टू अंडरस्टैंड कि इतनी बड़ी जगह, इतना बड़ा, देर इज अ सराउंडिंग, बट ही इज फ्लडेड विद द सराउंडिंग, बट ही वेंट विद द स्ट्रॉन्गेस्ट इम्पल्स कि मेरे पीछे कुछ रेंग रहा है. सो इन एस्पिन यू गो विथ योर स्ट्रॉन्गेस्ट इम्पल्स. वो है या नहीं है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, वो आपका डर है, लेकिन दैट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट इम्पल्स. और यहाँ पे क्या होता है कि इम्पल्स जो है या वो सप्रेस फीलिंग जो है वो इतनी लॉन्ग ड्यू है कि आपको पता है वो कभी भी ब्रेक हो सकती है. और यहाँ पे तो इट इज ऑलवेज फ्लडेड. सो दिस इज द डिफरेंस एंड दिस इज द सिमिलैरिटी. सो द सिमिलैरिटी बिटवीन चेरी प्लम एंड होली, उसमें कैसा होता है, दे आर अंडर एक्सट्रीम इमोशनल रिस्पॉन्स. अब वो प्रेशर होता है बेसिकली. सो बट देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ प्रेशर. हियर वी आर टॉकिंग अबाउट इमोशनल प्रेशर. अब वो कैसे होता है, एक्सट्रीम कैसे होता है. चेरी प्लम के अंदर अगेन, we know there's suppressed feelings, we know there's control from a very long time, but at the same time they fear. ये डिफरेंस की बात हो रही है अब. दोनों में दे आर अंडर एक्सट्रीम इमोशनल प्रेशर. पर डिफरेंस की बात क्या है कि चेरी प्लम के अंदर दे कैन एक्सप्लोड एट एनी रॉन्ग टाइम. जरूरी नहीं है बहुत टाइम तक उन्होंने अपने गुस्से को दबा के रखा हुआ है, राइट. अपने सप्रेस फीलिंग्स को दबा के रख रखा है. वो इंसान कब तक दबा के रखेगा, कभी ना कभी तो फटेगी. लेकिन वो जब फटता है, इट माइट नॉट बी द राइट टाइम. कभी गलत समय पे भी वो फट सकता है. दैट इज अ चेरी प्लम स्टेज. सो नाउ द एस्पिन स्टेज. एस्पिन में क्या होता है, दे आर होली, सॉरी, होली में क्या होता है, दे आर कंटिन्यूसली एक्सपीरियंसिंग एंड एक्सप्रेसिंग बोथ. they are experiencing also and they're expressing their anger, their rage, या फिर अपना jealousy है. कंटिन्यूस वो आपको बताते चले जाएंगे. सो यहाँ पे तो एक ही टाइम पे वो फटना है. दैट टाइम nobody knows whether it's a right time or whether it's a wrong time. और होली के अंदर क्या होता है कि दे कीप ऑन स्टीमिंग इट ऑफ. वो बोलते हैं ना, जब होता है तब इमीडिएटली बोल के दे विल स्टीम इट ऑफ. हो गया, खत्म हो गया, वो चैप्टर क्लोज हो गया. सो द सिमिलैरिटी क्या थी, सिमिलैरिटी ये थी कि दे बोथ अंडरगो एक्सट्रीम इमोशनल प्रेशर. और डिफरेंस हमने देख लिया, एट अ रॉन्ग टाइम एंड कंटिन्यूस होली के अंदर. नाउ नेक्स्ट कम्स चेरी प्लम एंड इम्पेटियंस. अब चेरी प्लम और इम्पेटियंस बोथ अपीयर टू बी अंडर प्रेशर. अंडर प्रेशर ऑफ व्हाट, ऑफ कोर्स टाइम. लेकिन इधर टाइम का कैसा है, चेरी प्लम के अंदर दे आर स्ट्रगलिंग फॉर द सेल्फ कंट्रोल. We know why, because of the suppressed feeling, because of the control feelings. They're suffering because they know कि ये there has to be a time. कभी भी ये ना टिक कर रहा है, ये बॉम्ब की तरह टिक कर रहा है, ये कभी भी फटेगा, राइट. उधर हमें पता था कि रॉन्ग टाइम पे फट सकता है. यहाँ पे द टाइम इज देयर, दैट इम्पेशेंटनेस इज देयर फॉर द सेल्फ कंट्रोल, कि कब तक वो सेल्फ कंट्रोल करके रखेगा इंसान. और उसी तरह इम्पेटियंस में क्या है, दे आर प्रेशर्ड बाय द टाइम. दे आर ऑलवेज go to go. जैसे my father is always go to go. Like if he has to reach to the hospital at 8 o'clock, so everybody, उनके हाउस सर्जन होंगे, रेजिडेंट्स होंगे, वो पूरी रात वो लोग पढ़ रहे हैं, बट दे नो कि अगर आज डॉक्टर वैद की क्लास है, सो दे विल रीच 10 to 8. वो कैसे भी उठ के 10 मिनट पहले पहुंच जाएंगे, बिकॉज दे नो कि डॉक्टर वैद इज अ टाइम टेबल. वो टाइम टेबल है, वो कहीं पे भी पहुंचना है तो उनका दिमाग चलता रहता है कंटिन्यूस, कि ये काम करना है, ये काम करना है, और इस टाइम पे ये काम करना है, उस टाइम पे वो काम करना है. सो फॉर सर्टेन पीरियड दैट इज अ गुड हैबिट. बट समटाइम्स व्हेन यू आर ऑब्सेस, उससे क्या होता है, बाकी लोगों पे भी इफेक्ट आने लगता है. वो चीज अच्छी भी हो सकती है, बट वो चीज कभी कभी ऑब्सेशन भी बन जाती है. सो उससे कैसा, उससे ये होने लगा, ओके दैट इज वेरी गुड व्हेन यू आर ऑपरेटिंग ऑन अ थिएटर. सो द टाइम मैटर्स अ लॉट. So this is just an example what I'm giving you. And at the same time, there is a last similarity and difference, that is cherry plum and sweet chestnut. अब स्वीट चेस्टनट और चेरी प्लम में एक ही चीज है, फियर एंड डिस्पेयर. सो दे आर बोथ रिएक्शन टू द एक्सट्रीम फियर एंड डिस्पेयर. चेरी प्लम का रिएक्शन क्या होगा एक्सट्रीम फियर और डिस्पेयर के अंदर, लाइक उनको लगेगा कि इफ आई एम नॉट एबल टू डील, आइदर आई विल गो मैड or I will come or I will commit something wrong. So that is what is their fear, कि कहीं मैं डिस्ट्रक्टिव नेचर नहीं हो जाए मेरा. That is the fear in cherry plum. अब sweet chestnut में क्या होता है, at times they feel that they have reached that utmost level of endurance. बस अब इससे आगे मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा. So there they given, they are afraid to go on further. That they are the dark souls of the night.
So they will not react like cherry plum. They will not go mad, but they will understand ये मेरा अटमोट endurance मैंने यहाँ पे पार कर लिया है. इससे आगे अब मैं कर ही नहीं पाऊंगा कुछ, मैं कर ही नहीं पाऊंगी कुछ. So that is sweet chestnut. So when you see कि they have both reactions are different, but both will react somewhat similarly in a sense कि एक्सट्रीम फियर और डिस्पेयर में दोनों के रिएक्शंस क्या होते हैं. यहाँ पे उनको चेरी प्लम में डर है और उसको वो डर है कि मैं इससे आगे कुछ कर ही नहीं पाऊंगा. सो वेरी माइन्यूट सिमिलैरिटीज होती है, वेरी माइन्यूट डिफरेंसेस होते हैं, विच कई बार कैसा होता है कि आपने एक रेमेडी दे दी, आपको कंटिन्यूस लगता चला जा रहा है कि द बिहेवियर पैटर्न इज नॉट चेंजिंग. सो प्लीज अंडरस्टैंड देयर इज समथिंग माइनर दैट यू हैव मिस्ड विद द पेशेंट. सो आप उसकी जो डिफरेंस रेमेडी है, differential remedy है which we are you know we are learning, you can note it down. So immediately if you try the differential remedy, it might hit or it might not also hit because something you have missed in the case also. कभी ये भी हो जाता है. Then we have to rethink or we have to retake the case. Starting point से start करना पड़ता है. So yes, cherry plum was not very favorite of दादा, क्योंकि दादा एक चीज हमेशा बोलते थे कि मुझे ये चीज समझ में ही नहीं आती है, like why we are overthinking. So he would always say one sentence that our lives are the result of our thoughts. अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा. And that is what I remember during pregnancy. बड़े बुजुर्ग घर में कहते हैं ना, लड़कियों को जो भी प्रेग्नेंट होती है, अच्छा सोचो, अच्छा खाओ और अच्छा बोलो. So that you are giving positive affirmations to your mind, and that thoughts, those thoughts and everything that positive is going into your unborn child. So उनको ये हमेशा समझ नहीं आता था. कई बार बोलते थे इतना ज्यादा सोचना क्यों है, why can't you live in present. And I have a very good friend, and हमेशा वो यही बोलते थे कि यू नो व्हाई डू यू हैव टू ओवर थिंक, व्हाई कांट यू लिव इन प्रेजेंट. सो दैट्स व्हाट चेरी प्लम, इट उसका चेरी प्लम का सबसे ब्यूटी ये है, द एसेंस इज दैट इट हेल्प्स यू टू काम योर माइंड, काम योर थॉट्स. जब आप शांत स्वभाव में होगे तब आपको पता चलेगा कि आपने क्या गलत बोला है, आपने गुस्से में क्या गलत किया है, आपने गुस्से में क्या चीजें तोड़ी है. सो चेरी प्लम एसेंस, इट हेल्प्स यू टू काम योर माइंड, it helps you to balance your mind, and it helps you to balance your physical body also. आपकी सर्कुलेशन शांत होएगी, आपकी ब्रेथ शांत होएगी, तो आपको सोचने की शक्ति भी आपकी बढ़ेगी. सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ चेरी प्लम. एंड यस, वी हैव सम कॉम्प्लीमेंट्री रेमेडीज ऑफ चेरी प्लम विद होम्योपैथी. काफी सारी हैं इसके अंदर. एकोनाइट है, अर्जिटम नाइट्रिकम है, कालीब्रोम है, कैलकेरिया कार्ब है, एंड द बेस्ट इज कैमोमिला. So just 1-2 lines because Sonal ma'am is not here. So calcarea carp का like what is the mental aptitude for the calcarea carp? इसमें क्या होता है, इंसान को fear होता है that they will go crazy, and what if people might notice me going crazy, so they do not like it. That is calcarea carp. Even the ideas that is